ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਲੰਬੀ ਚੱਲਦੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾੜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸਟਿਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ। ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾੜਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਬਰਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਬਰਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾੜਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾੜਾ ਜਾਂ ਬਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪੁੱਤ ਭਤੀਜੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਢੁੱਕਣ ਥੋੜੀ ਚੱਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬਰਾਤ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਲਾੜਾ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਬੁਝਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਬੁਝਾਉਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਰਾਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਾੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਆਡੀਅנס ਦਾ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਵੇਤਾ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰੂੰਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਛੋਟਾ ਮੇਰਾ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਪਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸਟਰ ਛਪ ਗਏ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਗਾ। ਨੀਂਦ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਨੀਂਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਨਾਊਂਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਇਆ ਉਹ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੌਸਲਾ ਮੇਰਾ ਡਬਲ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਡਬਲ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਨਪਿਆ ਤੁਲਿਆ ਸੀ। ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ, ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਇਹ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਭਾਸ਼ਣ? ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬਹੁਤ ਰਹਿਣਾ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ। ਮੈਂ ਤੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੜਾ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਣਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਓਗੇ ਸੈਂਸਰ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ। ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਚਾਚੇ ਭਤੀਜੇ ਪੁੱਤ ਭਤੀਜੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੂ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ऑडियंस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सवाल। अरविंद जी, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मोहाली में बतौर वकील काम करता हूँ। हमारे पास छोटे छोटे लड़कों के ऊपर कोई 10 ग्राम हीरोइन के किसी चीज़ के केस डाल दिए जाते हैं कि क्योंकि उनको नशा लेने का आदी बना दिया गया है। पिछली इलेक्शन में भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कसम खाई थी कि हम नशा पंजाब से ख़त्म कर देंगे। आपके पास ऐसा क्या रोड मैप है कि पंजाब में नशा ख़त्म हो जाए और जो लड़के बच्चे नए आदी बना दिए गए हैं नशा लेने के, उनको रिहेबिलिटेट किया जाए और जो बड़े बड़े लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो पैसे कमा रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और पंजाब नशा मुक्त बन जाए? बहुत वधिया वकील साहब सवाल है, बैठ जाओ। मैं अपनी स्पीचेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦੇਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਡਿਕਟਡ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। 10 ਗ੍ਰਾਮ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਰੀਹੈਬ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੀਹੈਬ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਨ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਡਿਕਟਡ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੰਬਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਊ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੀਹੈਬ ਸੈਂਟਰ, ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਸਮਾਜ ਨੇ
ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਤਾ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਰੀਹੈਬ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਸ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰ ਦਿਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ। ਲੋਕ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੋਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਫੜਾ ਕੇ ਆਏ। ਲੋਕ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ ਘਰੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੰਦਾ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ, ਮੈਪ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ 2-4 ਹੋਏ ਹੋਵੋਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਚ ਆਏ? सर नीयत का सवाल है, जो भी भगवान जी ने कहा जी। अगर आपकी नीयत नशा ख़त्म करने की है जी, तो नशा ख़त्म हो सकता है। और अगर आपकी नीयत नौटंकी करने की है, अगर आप नशा करने वालों के साथ मिले हुए हो जी, तो आप क्या करोगे? एक फर्जी FIR कराओगे, दोषियों को मौका दोगे कि जाके एंटीसिपेटरी बेल ले लो, यही सब नौटंकी करोगे? 111 दिन मिले थे इनको, और उसके पहले 4.5 साल मिले कैप्टन साहब को। इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं साठगांठ है सारों के अंदर। अगर हमारी नीयत साफ है, अगर हम करना चाहते हैं, तो इन्होंने फार्मूला बता दिया कि 2 लेवल पे एक्शन होगा। एक रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाएंगे जो कि बच्चों को रिहैबिलिटेट करेंगे, उनको स्किल देंगे और उनको जॉब्स दिलवाएंगे। दूसरे लेवल पे जो सप्लायर हैं, ढेरों बहुत बड़ा सप्लाई नेटवर्क है, इनकी अगर धरपकड़ शुरू कर दो आप। अगर हमारा मुख्यमंत्री ईमानदार है और ये नशा बेचने वालों से नहीं मिला हुआ, तो ये क्या करेगा? ये DGP को बुला के बोलेगा कि 10 दिन के अंदर एक सप्लायर जेल के अंदर होना चाहिए। पुलिस को खुला हाथ दे दो आप, पुलिस सारे नेटवर्क को जानती है, एक पुलिस वाला जानता है, उनको खुला हाथ नहीं देते। जब कोई DGP कहता है कि मैं इसको पकड़ लूं, तो उस DGP को बदल देते हैं। अभी हमने तमाशा देखा पंजाब का, 4 DGP बदल दिए। क्यों बदल दिए? क्योंकि किसी को बचाना है, किसी को पकड़ना है। ये नहीं होगा, पंजाब के हक में काम होगा। मतलब एक्चुअल च लक तोड़ रहे हैं एक्चुअल। मैं इसी से जुड़ा एक सवाल जरूर जानना चाहूंगा। मैं अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में आपके देख रहा था, आप कह रहे थे कि 3 महीने में हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। नशे को लेकर प्लान है जो ये आप कह रहे हैं कि इंप्लीमेंट कितनी देर में हो सकता है? मुझे क्योंकि लगता पिछली है बार दावा था 4 महीने का, कैप्टन साहब कह रहे थे 4 हफ्ते उन्होंने में। तो 1 महीना कहा था, 4 गुटका साहब की 4 हफ्ते कहा था। मेरा अपना मानना है 3 से 6 महीने के अंदर, मैं ये भी अगर कहूँ 1 महीने में पूरा नेटवर्क खत्म हो जाएगा, समय लगेगा। 3 से 6 महीने के अंदर आपको देखने वाले नतीजे मिलने चालू हो जाएंगे, अच्छे नतीजे मिलने चालू हो जाएंगे 3 से 6 महीने के अंदर। और 17 और 22 में आपको नशे की स्थिति कैसी लगती है? वैसी की वैसी है, वैसी है वो तो। बढ़ाई है। नहीं, कैप्टन और कांग्रेस दावा करते हैं कि हमने बहुत एक्शन किया, वोट सेंटर्स बना दिए और STF बना दी, उसने कार्रवाई की, बहुत सारे केसेस हुए, तो बहुत कम हो गया नशा। एक लिफाफा तो 5 साल खोला नहीं, कोर्ट कह रही है हमने कब कहा है ना खोलो, STF ने जो लिफाफा बनाया था। और सबसे देखो, पंजाब गुरुआं दे नाम ते वसदा है गौरव। साडे हर रोज़ स्पीकर चों गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला दा बाणी दा प्रचार होंदा। अमृतसर साडा सब तो पवित्र शहर है जिथे दरबार साहब। तुसीं सोच सकते हो, मतलब हैरानी दी हद है कि अमृतसर दे विच एक नशा छड़ाऊ केंद्र है, उत्ते लिखा है नशा छड़ाऊ केंद्र ओनली फॉर गर्ल्स। सर, गर्ल्स के लिए स्कूल होते थे, गर्ल्स के लिए सिलाई सेंटर होते थे। मतलब कितनी शर्म की बात है कि पंजाब में नशा छड़ाऊ केंद्र ओनली फॉर गर्ल्स। मतलब इस लेवल पे इन्होंने नस्ल कुशी कर दी है, जेनोसाइड के केस चलने चाहिए इन पर तो। क्योंकि मान साहब इस वेले 2 तरह के दावे ने, एक 4.5 साल के दावे ने, एक 111 दिनों के दावे। मतलब दो पार्ट के विच वंडिया जा रहा है दाविਆਂ नहीं, दोनों दाविਆਂ ਨੂੰ। नहीं, हिसाब तो 5 साल का ही होगा ना। ये किवें कह सकते हो तुसीं कि एक डब्बा कढ़ के इसे डब्बे ते ध्यान दिओ, बाकी ट्रेन जिहड़ी है क्योंकि 100 दिन का हिसाब भी पिछले दिन ही दिता गया। वो तो कल ED ने देख लिया 100 दिन का हिसाब, सारा हिसाब, पूरा हिसाब किताब ED ने। मेरे ख्याल से पंजाब को लूटने की जिस स्पीड पे काम किया है, इतनी स्पीड में तो पिछले वालों को भी पीछे छोड़ दिया इन्होंने।
111 दिन के अंदर कैश ही कैश, कैश ही कैश, कैश ही कैश, गिननी मुश्किल हो गई वो ईडी वालों को। जैगुआर गाड़ियां, 56 करोड़ रुपए की फर्जी एंट्रियां। अभी तो गिन रहे हैं सर, अभी गिन रहे हैं और मिलेंगे अभी। 111 दिन के अंदर। और फिर बैठ के मैं कल उनको देख रहा था, मतलब जिस तरह से वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, मेरे साथ ये हो गया। मैं मानता हूँ मोदी जी अपने विरोधियों को तंग करते हैं, बदले लेते हैं, मैं मानता हूँ। मेरे ऊपर इतनी रेड कराई, थोड़ा जिक्र भी कीता कल उन्होंने। घर के वो तो कहते हैं, कह रहे कि मेरे भांजे पे नहीं, मेरे पे रेड हुई थी जी, मेरे घर पे रेड हुई थी, पुलिस मेरे बेडरूम में गई थी जी, मेरे ऊपर, मेरे दफ्तर पे सीबीआई की रेड हुई थी जी। क्या मिला उनको? 11 मफलर मिले जिनका हिसाब किताब नहीं था। इधर 11 मैं तो नहीं रोया, मतलब मेरे को तो वो नहीं चर्चा भी हुई आए। होनी। और अभी चर्चा खूब तेज चल रही है कि सतिंदर जैन हमारे जो मंत्री हैं उनकी गिरफ्तारी होने वाली है। वो तो तैयार बैठे हैं, आ जाओ कर लो गिरफ्तार। पर उन्होंने चन्नी तो, साहब के घर, इनके रिश्तेदार के घर पे जो 10 करोड़ का कैश मिला, जी, मैं आज चन्नी साहब से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, ये पैसा किसका है? बताएं वो ये पैसा किसका है? ये पंजाबियों का पैसा है। और लोग बता रहे हैं जी ये तो बिल्कुल ट्रेलर था। पिछले 111 दिन के अंदर जो दुकान खुली हुई थी, कोई कह रहा है जी 1000 करोड़ कमा लिए, कोई कह रहा है 900 करोड़ कमा लिए, मेरे को नहीं पता, जनता कह रही है। तो मैं पंजाब के लोगों से जानना चाहता हूं, एक तरफ रेता चोर मुख्यमंत्री है, वो कहते हैं मैं आम आदमी हूं, आम आदमी नहीं हूं, बेईमान आदमी हूं। एक तरफ रेता चोर मुख्यमंत्री है और एक तरफ कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री है। जनता को चुनना है, ये मौका मिला है। वाहे गुरु जी ने, गुरु साहब जी ने कितने 66 में वो हुआ था, तब से लेके आज तक इतने सालों के बाद एक इतना सुनहरी मौका दिया है कि एक तरफ चोर हैं, चोरों की पार्टियां हैं, एक तरफ सारे डकैत हैं और एक तरफ कट्टर ईमानदार हैं। आपको चुनना है। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ मैं ਨਾਲ ਹੋ कद्दी ਰਹੀ ਹੈ शोर ਤਾਂ नहीं ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ मचाया, ਆ। मैं कद्दी शोर, उन्होंने मैं तो ये अभी गल- आपके चैनल पे कह रहा हूं कि सतिंदर जैन गिरफ्तार होने वाले हैं, ਜੀ, ईडी गिरफ्तार करने वाली है अगले कुछ ਕਿਉਂਕਿ दिनों ਉਹਨਾਂ में। ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। कहते गुप्त समझौता है आपका गुप्त नाम। समझौता है। कभी कभी कहते हैं उसकी बी टीम है, कभी इसकी बी टीम है। हम किसी की बी या सी टीम नहीं है। आम आदमी पार्टी 3.25 करोड़ पंजाबियों की ए टीम। सारा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने हमें दिल्ली चलाने में कितनी तकलीफें दी है। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी हमसे बदला लेने में। मनीष सिसोदिया पे सीबीआई की रेड हो चुकी, सतिंदर जैन पे इनकम टैक्स की 3 बार रेड हो चुकी, हमारे 21 एमएलए गिरफ्तार कर चुके, सारे छूट के आ गए, कोर्ट से सबको बरी कर दिया। और चन्नी साहब कहते हैं मैं मिला हुआ हूँ बीजेपी के साथ। मैं तो चन्नी साहब से एक ही मैंने कहा, मैं कह रहा हूँ केजरीवाल को छोड़ो, केजरीवाल तो ऐसा ही है। चन्नी साहब ये बताओ, ये 10 करोड़ रुपए किसके हैं? ये 56 करोड़ की एंट्री किसकी है? इसका जवाब दो। ये तो बच गए, नहीं तो 111 दिन में इन्होंने जितनी नौटंकी करी है, आम आदमी आम आदमी आदमी, पता चल गया 10 दिन पहले चुनाव के, ये बेईमान आदमी है। लेकिन वो पॉलिटिकल वेंडेटा इसको कहते हैं। आपको लगता है कि बदलाखोरी है इसमें कहीं? मैं तो फिरोजपुर कह का रहा हूं, जिक्र उन्होंने कर दिया कि जाते हुए अधिकारी मैं हमको तो बोल कह के रहा गए हूं कि मोदी जी अपने विरोधियों को चुन चुन के तंग करते हैं। लेकिन उन्होंने मेरे पे भी रेड करी थी, मेरे घर से कुछ नहीं मिला। इनके घर से जब इतना कैश मिल रहा है तो जनता पूछ रही है यार कुछ तो बख्श वो देते। कहते 111 दिन प्रधानमंत्री में तो तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। चलो बदला ले रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं, ये 10 करोड़ रुपए किसके हैं? चन्नी साहब इसका जवाब दो। पंजाब ये जानना चाह रहा है कि ये 10 करोड़ रुपए किसके हैं और कितने हैं, कहां रख रखे हैं, रेता चोरी से कितना कमाया। रंधावा साहब ने इल्जाम लगाया था ना कि अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे लग रहे। बताओ, रंधावा राणा गुरजीत ने उनके अपने मंत्री, उनके अपने एमएलए आरोप लगा रहे थे कि पुलिस अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग में सीएम ऑफिस में पैसे चल रहे हैं नकली। तो ये ट्रांसफर पोस्टिंग में इन्होंने 111 दिन में पैसे कमाए, रेता चोरी में पैसे। राघव चड्ढा इनके हल्के में जाके रेता चोरी पकड़ के आया। मतलब भारत के इतिहास में इतनी बेशर्मी पहली बार हुई होगी कि मुख्यमंत्री अगले दिन खड़ा होकर उनको बचा रहा है, रेता चोरों को। रेता चोरी में पैसे कमाए इन्होंने, ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे कमाए इन्होंने,
कितने पैसे कमाए चन्नी साहब, ये जब भारत पंजाब जानना चाहता है। ਤੁਹਾਨੂੰ आपकी- ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤਾ? आज उनका सबसे बड़ा कंपटीशन जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ है पंजाब में। अगर हम सारे सर्वे में नंबर 1 आ रहे हैं तो वो नंबर 2 आ रहे हैं, तो वो जबरदस्ती कीचड़ फेंक रहे हैं हमारे ऊपर। नहीं। जबरदस्ती कीचड़, वो चिपक नहीं रहा कीचड़। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो क्या चन्नी पर पर्चा होगा? हमें किसी से बदला नहीं लेना। नहीं, हम अगर बदले, इतने एक मिनट, serious एक मिनट, हम बदले की राजनीति करने नहीं आ रहे, लेकिन जिन जिन लोगों ने पंजाब को लूटा है, मैं पंजाब की जनता से जानना चाहता हूं, उनसे पैसा वापस लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए। मेरा किसी व्यक्ति विशेष से कि इसको जेल में डाल देंगे